قلات میں 2 مسافر بسوں میں خوفناک تصادم، حادثے میں 5 افراد جاں بحق اور 20 سے زائد مسافر زخمی ہوئے۔ ٹریفک حادثہ قلات میں ریچھ کے مقام پر پیش آیا۔ حادثے کے بعد ڈی ایچ کیو قلات میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ 15 زخمیوں کو ڈی ایچ کیو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو، قلات میں 2 مسافر بسوں میں خوفناک تصادم ہوا ہے۔ حادثے میں 5 افراد جاں بحق اور 20 سے زائد مسافر زخمی ہو گئے۔ ٹریفک حادثہ قلات میں ریچھ کے مقام پر پیش آیا۔ حادثے کے بعد ڈی ایچ کیو قلات میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ 15 زخمیوں کو ڈی ایچ کیو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ کراچی میں ڈمپر نے ایک اور جان لے لی۔ سرجانی ناردرن بائی پاس پر ٹریفک حادثے میں طالب علم جاں بحق ہو گیا۔ پولیس حکام نے بتایا ٹریلر نے موٹر سائیکل سوار اویس کو ٹکر ماری، ڈرائیور فرار ہو گیا۔ 15 سالہ نوجوان 9ویں جماعت کا طالب علم اویس 5 بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا۔ اویس 9ویں جماعت کا پریکٹیکل دے کر گھر واپس آ رہا تھا۔ اور کراچی کے علاقے قائد آباد چوک کے قریب پولیس کیمپ پر کریکر حملہ، 3 اہلکاروں سمیت 4 افراد زخمی ہوئے۔ نامعلوم ملزمان پل پر سے پولیس کیمپ پر کریکر پھینک کر فرار ہوئے۔ ایس ایس پی ملیر کاشف آفتاب نے بتایا زخمی اہلکاروں کو جناح اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ کرائم سین ٹیم شواہد اکٹھے کر رہی ہے۔ عید سیکیورٹی کے لیے علاقے میں پولیس کیمپ لگایا گیا تھا۔ زخمی اہلکاروں میں ایس ایس یو کمانڈو بھی شامل ہیں۔ تینوں اہلکاروں کو معمولی نوعیت کے زخم آئے ہیں۔ کراچی کے علاقے قائد آباد پل کے قریب پولیس پر کریکر حملے میں 3 پولیس اہلکاروں اور 1 راہگیر سمیت 4 افراد زخمی ہو گئے۔ مزید بتائیں گے عدنان راجپوت۔ جی بالکل، قائد آباد پل کے قریب اب سے کچھ دیر قبل نامعلوم دہشت گردوں کی جانب سے پولیس کیمپ پر کریکر حملہ کیا گیا تھا۔ 3 اہلکاروں کے زخمی ہونے کی اطلاع بتائی جا رہی ہے۔ ایس ایس پی ملیر کاشف عباسی ساتھ موجود ہے، مزید جانتے سر بتائیے گا۔ ابتدائی طور پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اوپر برج کے اوپر سے کوئی نامعلوم افراد جو ہیں انہوں نے یہ کریکر جو ہے اس کو نیچے پھینکا ہے، اور وہ کریکر ہے یا ہینڈ گرینیڈ ہے اس کی رپورٹ یقیناً تھوڑی دیر میں فائنل ہو جائے گی، تو مزید بھی آپ کو آگاہ کر دیں گے۔ اس سے ایک ہمارا جوان پولیس کا زخمی ہوا ہے، سندھ پولیس کا، جس کا تعلق ایس ایس یو سے۔ اس کے علاوہ 2 لوگ قومی رضاکار جو ہیں ان کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے، اور 1 راہگیر کی اطلاع ہے۔ ایک جو ہے وہ تھوڑا سا زیادہ زخمی بتایا جا رہا ہے، باقی 3 زخمیوں کی حالت جو ہے خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے، اور باقی ہاسپٹل سے رپورٹ آتی ہے۔ پولیس کی بھاری نفری موجود ہے، رینجرز کی نفری بھی موجود ہے۔ کرائم سین یونٹ کو بھی طلب کر لیا گیا ہے، شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں، اور واقعے کے حوالے سے مزید تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ خبر ہے کوئٹہ سے، جہاں ڈبل روڈ پر پولیس موبائل وین کے قریب دھماکہ ہوا، جہاں بحق افراد کی تعداد اب 3 ہو گئی ہے۔ 4 پولیس اہلکاروں سمیت 16 افراد زخمی ہیں۔ جہاں بحق افراد میں کینسر کے ماہر ڈاکٹر مہر اللہ ترین بھی شامل ہیں۔ بم ڈسپوزل اسکواڈ کی ابتدائی رپورٹ میں بتایا گیا دھماکے میں 2.5 کلو گرام بارودی مواد اور بال بیرنگ استعمال کیے گئے۔ بارودی مواد موٹر سائیکل میں نصب تھا۔ دھماکہ ریموٹ کنٹرول ڈیوائس کے ذریعے کیا گیا۔ بلوچستان میں مسافروں کو اتار کر قتل کرنے کا ایک اور اندھوناک واقعہ۔ گوادر سے کراچی آنے والی بس سے مسافروں کو اتار کر گولیاں ماری گئیں۔ مرنے والوں کا تعلق لاہور، شیخوپورہ، ملتان اور گجرات سے تھا۔ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائیاں 11 خوارج جہنم واصل کر دیے گئے۔ شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں آپریشن 5 خوارج ٹھکانے لگا دیے گئے۔ میر علی میں دوسری کارروائی کے دوران سیکیورٹی فورسز نے 3 مزید خوارج ہلاک کر دیے۔ میران شاہ میں 2 خوارج کو انجام تک پہنچا دیا گیا۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے درہ بند میں آپریشن کے دوران ایک خارجی مارا گیا۔ آئی ایس پی آر نے بتایا ہے ہلاک خوارج کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد ہوا۔ علاقے میں کلیئرنس آپریشن کیا گیا ہے۔ وزیراعظم نے کہا ہے قرض سے نجات کے لیے جان لڑا دیں گے۔ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب میں کہا آئی ایم ایف کے پروگرام سے معاشی استحکام آ چکا، قرض کی زندگی غیرت اور وقار کی زندگی میں بدلنی ہے۔ وزیراعظم نے بتایا پچھلے 3 ہفتے میں خزان میں 134 ارب روپے آئے ہیں، کھربوں کے مقدموں کے لیے منصوبہ بنایا ہے۔ ایکنک نے پنجاب میں ایک اور موٹر وے بنانے کی منظوری دی تھی۔ سکھر حیدرآباد موٹر وے منصوبہ نظر انداز کرنے پر وزیر اعلیٰ سندھ کا احتجاج۔ مراد علی شاہ نے صوبے کے ساتھ وفاق کا رویہ انتہائی متعصبانہ قرار دیا۔ معاملہ صدر آصف علی زرداری اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کے سامنے اٹھانے کا فیصلہ۔ ایکنک نے لاہور ساہیوال بھاون نگر موٹر وے بنانے کے لیے 436 ارب کی منظوری دی۔ 295 موٹر وے کی ابتدائی منظوری کے وقت لاگت 264 ارب تھی۔ ایکنک اجلاس کی صدارت نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کی۔ وزیر بلدیات سندھ سعید غنی کہتے ہیں نہروں کے مسئلے پر وفاق سے ٹکراؤ ہوتا ہے تو ہم بھی تیار ہیں۔ ارسا میں دریائے سندھ سے کینالز نکالنے کی تجویز آئی تو سندھ نے احتجاج کیا۔
پروگرام خبر محمد مالک کے ساتھ میں بولے پنجاب میں موٹر وے بنانے پر کوئی اعتراض نہیں، حیدرآباد سکھر موٹر وے کو ترجیح دیں جو معیشت کے لیے بہتر ہے۔ اب موٹر وے بنانے پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ہمارا پوائنٹ یہ ہے آپ پرائرٹی دیجیے چیزوں کو جو پورے ملک کے لیے فائدہ مند ہوں۔ سکھر حیدرآباد موٹر وے کوئی سندھ کا منصوبہ نہیں ہے، کراچی سے پورے ملک میں لوگ آتے جاتے ہیں۔ جو سکھر حیدرآباد موٹر وے ہے اس کے اوپر گورنمنٹ کا پلان اس کو پی ایس ڈی پی سے کرنے کا نہیں ہے، یہ کلیئرٹی ہے وہ پی ایس ڈی پی سے نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس پہ سی ایم صاحب نے ایک خط نہیں لکھا، کئی خطوط لکھے ہیں کہ جی ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ پہلے اس کو کریں، باقی منصوبے آپ جو ہیں وہ بعد میں کریں۔ یہ جو پانی کا مسئلہ ہے بڑا سنگین ہوتا جا رہا ہے، کیا پانی کا مسئلہ اتنا سیریس ہے کہ اس پہ آپ کا ڈو اور ڈائی والا سین ہے؟ دیکھیے پیپلز پارٹی صوبہ سندھ میں حکومت میں ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صوبہ سندھ کے لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ میرا نہیں خیال ہے کہ یہ اتنا آسان ہوگا کہ کینال کا پروجیکٹ وہ آگے بڑھائیں اور پیپلز پارٹی جو ہے چپ کر کے بیٹھی رہے۔ 4 تاریخ کو اس پہ اناؤنس کر رہے ہیں بلاول صاحب اور لیڈ کریں گے اس موومنٹ کو؟ یقیناً کریں گے، ہم تو یہاں اپنی جو موومنٹ ہے وہ شروع کی بھی ہوئی ہے، احتجاج میں بھی ہیں، حکومتی سطح پر جو ذمہ داریاں سندھ حکومت کی بنتی ہیں وہ بھی پوری کر رہے ہیں۔ آپ کا وفاق اور پنجاب سے کھلا ٹکراؤ ہوگا ایز اے پارٹی؟ ٹکراؤ جتنا بھی ہم کرنے کو تیار۔ ایکنک اجلاس میں سندھ کے نمائندے کی سکھر حیدرآباد موٹر وے کی بات پر نائب وزیر اعظم ناخوش۔ اتنے بڑے فورم پر سیاسی باتیں نہیں کی جاتی۔ اسحاق ڈار کا ناراض انداز میں سعید غنی سے مکالمہ۔ سعید غنی نے جواب دیا کہ سکھر حیدرآباد موٹر وے سندھ کے عوام کا مطالبہ ہے، کوئی سیاسی بات نہیں۔ لاہور ساہیوال بھاول نگر موٹر وے کی فنڈنگ سے متعلق کلیئر پیپر نہ ہونے پر سعید غنی کی بھی ناراضگی۔ سعید غنی کا این ایچ اے کے سربراہ پر ناراضگی کا اظہار، کا بغیر ورکنگ پیپر آپ لوگ اتنے بڑے فورم میں آ جاتے ہیں۔ سعید غنی نے ایکنک اجلاس میں موقف اپنایا، حیدرآباد سکھر موٹر وے اہمیت کا حامل ہے، پہلے اسے بننا چاہیے۔ کراچی میں بڑھتے ٹریفک حادثات میں اموات، گورنر سندھ کامران ٹسوری نے چیف جسٹس پاکستان کو خط لکھ دیا، ٹریفک حادثات پر نوٹس دینے کا مطالبہ، کراچی رجسٹری میں کارروائی شروع کرنے اور عوام کے تحفظ کے لیے سخت اقدامات صادر کرنے کی اپیل کر دی۔ رافع حسین کی رپورٹ۔ کامران ٹسوری نے میئر کراچی کے بیان بازی کی وجہ بتا دی، کہا ترقیاتی کاموں کی فہرست مانگی اور میری سحری اور افطاری کرانے کا مذاق بنایا گیا۔ میں نے کہا کہ مجھے ترقیاتی منصوبے بھیجیں، میں گورنر ہاؤس سے 100 ارب کا خط وزیر اعظم کو لکھوں گا، لیکن کوئی اسکیمیں نہیں آئی، بلکہ روزانہ کی بنیاد پر وہ ایسے پیچھے پڑ گئے ہیں جیسے کچھ لوگ چاند رات پہ پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ عید کے بعد میں خط لکھوں گا وزیر اعظم کو، آپ کے لیے نہیں، کراچی کی ترقی کے لیے اس رمضان کا، اس افطاری کا میئر صاحب روزانہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ میں صرف اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ یہ معصوم ہے، یہ بچہ ہے، نادان ہے، اسے معاف کر دے۔ گورنر ٹسوری نے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو بھی خط لکھ کر شہر میں بڑھتے ہوئے ٹریفک حادثات پر انتظامی کوتاہیوں کا نوٹس لیتے ہوئے کراچی رجسٹری میں کارروائی شروع کرنے اور شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کے لیے سخت احکامات جاری کرنے کی اپیل کر دی۔ گورنر ٹسوری نے خط میں کہا کہ عوام اب عدلیہ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ دوسری جانب 26ویں افطار ڈنر میں 27ویں شب کی مناسبت اور ٹریفک حادثات میں جہاں بحق افراد کے ایصال ثواب کے لیے دعا کرائی گئی۔ کراچی کی جانب سے گورنر ٹسوری کا سحری اور افطاری کرانے پر مذاق بنانے کے معاملے پر گورنر سندھ نے مفتی تقی عثمانی سے رابطہ کر کے سحر و افطار کا مذاق اڑانے پر فتویٰ مانگ لیا۔ پوچھا بتایا جائے ایسے لوگوں کے لیے دین کیا کہتا ہے۔ کیمرامین کاشف نظامی کے ساتھ رافع حسین، AR1 نیوز، کراچی۔ افطار پارٹیاں کرتے ہو، کڑھائیاں کھلاتے رہو، وعدہ پورا نہیں کر سکتے تو اعلان نہ کیا کرو۔ میئر کا گورنر کو جواب۔ مرتضی وہاب نے کہا میرا قصور نہیں، گورنر صاحب نے خود بلایا تھا، جو مجھے اختیار دلا رہے تھے اب اپنے لیے مانگ رہے ہیں۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کو اڈیالہ جیل میں بانی سے نہیں ملنے دیا گیا، اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا 4 گھنٹے انتظار کرتے رہے، عدالتی حکم نامہ بھی دکھایا پھر بھی ملنے نہیں دیا۔ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر شبلی فراز نے کہا یہ بے عزتی ہماری نہیں ادارے کی ہے۔ علامہ ناصر عباس نے کہا ہم کبھی نہیں تھکیں گے، کبھی ہار نہیں مانیں گے۔ فیصل چودھری کہتے ہیں پی ٹی آئی کا حصہ ہوں، مجھے پارٹی سے کوئی نہیں نکال سکتا، عید کے بعد بانی پی ٹی آئی سے ملاقات میں بات کروں گا، بس کے نیچے آنے والا نہیں، بس کو باہر بھیجوں گا، کسی کو بات کرنی ہے تو میرے منہ پر کرے، جو الزام لگائے جواب دوں گا۔ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں تو اصول بھی وہی چلیں گے، کارکنوں کو بانی پی ٹی آئی کے پیغام کا انتظار ہوتا ہے۔ جیل کے باہر میڈیا ٹاک پر پابندی قانون کے خلاف ہے۔
राजा साहब ने लाउडली, क्लियरली, ओपनली, पब्लिकली बोला, पीटीआई का वर्कर होने का ओहदा तो आप समेत कोई नहीं छीन सकता मेरे से। इमरान खान साहब से मेरी मुलाकात ईद के बाद होनी है तो मैं कन्फ्रंट कर लूंगा। मैं बास के नीचे आने वाला नहीं, मैं बास को बाहर भेजूंगा। ऐसे नहीं होता। मेरे साथ जिसे बात करनी है वो मेरे मुंह पे बात करेगा, और मैं जो मेरे पे इल्जाम लगेगा मैं साबित भी करेगा। रियासत मदीना की हम बात करते हैं तो असूल भी वही अप्लाई होंगे। इमरान खान के साथ हम लोग पहले दिन से खड़े हैं और खड़े रहेंगे। लोग जो है ना वो मैसेज वेट कर रहे होते हैं कि इमरान खान की गुफ्तगू बाहर आई। वो कोई हमारा चेहरा देखने के लिए नहीं बाहर वेट करते। वो जो इमरान खान साहब की सेहत कैसी है, उनकी वो कैसे रह रहे हैं जेल में, वो खैरियत से हैं, और उनका पैगाम क्या, ये तीन चीजें वर्कर सुनना चाहता है। वो नैरेटिव जो है सिस्टमेटिकली प्लानिंग के तहत बैन कर दिया गया। तौर वकील मैं जज साहब से हमेशा ये कन्फ्रंट करूंगा कि सर ये मुझे आप कह रहे हैं कि कंसेंट दें, किस लॉ के तहत? जो बात आप कह रहे हैं वो तो आइन के खिलाफ है। खबर है चकवाल से। मोटरवे सॉल्ट रेंज में बस बेकाबू होकर उलट गई। हादसे के नतीजे में 3 मुसाफिर जान बहक जबकि 30 जख्मी हुए हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं अमीर अब्बास से। बताइए अमीर। जी, ये मोटरवे पर कलर कार के करीब सॉल्ट रेंज के इलाका में ये मुसाफिर बस हादसे के नतीजे में उलट गई है, जिसके नतीजे में 3 मुसाफिर जान बहक जबकि 30 जख्मी हुए हैं। इब्तदाई इतलात के मुताबिक मोटरवे पुलिस को जब बस हादसे की इतला मिली तो इस मौके पर इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी गई। ये बदकिस्मत बस जो है रावलपिंडी से चिश्तियां जा रही थी। जब मोटरवे पर सॉल्ट रेंज के इलाका में पहुंची तो ब्रेक फेल होने के बायस उलट गई। वाकई की इतला मिलती ही रेस्क्यू टीमों ने इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं और मुतअद्दिद जो मुसाफिर हैं वो बस में फंसे हुए हैं, जिनको निकालने की कोशिश की जा रही है। जी, अपडेट करने के लिए शुक्रिया अमीर अब्बास। वेलकम बैक। ए अल्लाह, सब मुसलमानों को दुनिया और आखिरत की सुरखरुही अता फरमा। वतन अजीज को दहशतगर्दी से मुकम्मल निजात अता फरमा। उम्मत मुस्लिमा को तरक्की और खुशहाली अता फरमा। आमीन। माह सियाम के 27वें शब के फ्यूज़ बरक़ा समेटने के लिए फर्जंदान इस्लाम इबादत और दुआओं में मशगूल हैं। इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद में महफिल शबीना का रूपरवा इज्तिमा हुआ। वतन अजीज और अहले इस्लाम की तरक्की और इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की जा रही हैं। रुक करेंगे हम लाहौर का, जहां पर शहरी जो है इस वक्त सहरी के लिए पहुंचे हैं मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स पर, और हमारे नुमाइंदे वहां पर मौजूद हैं। यार मोहम्मद, उनसे मजीद जानेंगे। यार मोहम्मद बताएगा। मैं गढ़ी शाह के इलाके में मौजूद हूँ। यहाँ पे मारूफ सज्जी पॉइंट है। लाहौरी सहरी में सज्जी को एंजॉय कर रहे हैं और खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं। दोस्तों के हमरा और घर वालों के हमरा यहाँ पे देखा जा रहा है कि बड़ी तादाद में शहरी मौजूद हैं। बहुत प्यारी सज्जी खाई है, बहुत मज़ेदार है इनका टेस्ट, हर चीज़ बहुत मज़ेदार है और सर्विस भी इनकी बहुत प्यारी है हर चीज़। तो हमने दोस्तों ने बहुत एंजॉय किया है। दोस्तों का अलग मज़ा है, घर वालों का अलग, लेकिन दोस्तों के साथ मज़ा कुछ ज़्यादा ही है। और सज्जी जहाँ पे हुआ में चस आती है। घर वालों के साथ भी खूब सैरियाँ इन्होंने की हैं, लेकिन दोस्तों की महफिलें भी इस रमज़ान मुबारक में हमें ज़्यादातर नज़र आई हैं मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स पे। और लाहौरियों की ये रवायत है कि घरों से बाहर सहरी को तरजीह देते हैं। जी, मुल्तान में शहरी MDA चौक से सहरी के लिए निहारी, पाए और चने की खरीदारी में मसरूफ है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे राना फारूक से। मुबारक का आखिरी अशरा जारी है और मुल्तान शहर की सूरत हाल ये है कि जिस तरफ भी जाए रौनक है, चहल पहल है, गहमा गहमी है। छोटी मार्केटें हों या बड़े बाजार हों, वहाँ पर जितने भी फूड पॉइंट्स हैं वहाँ पर शहरियों की बहुत बड़ी तादाद शहरी की खरीदारी में मसरूफ है। इस वक्त हम मुल्तान के मसरूफ तरीन MDA चौक पर मौजूद हैं। ये मुल्तान का वाहिद चौक है जहाँ पर हर चीज़ दस्तियाब है। यहाँ से आपको पाए मिलेंगे, निहारी, लस्सी, दही, चने, हर चीज़ यहाँ से बआसानी दस्तियाब है। यहाँ पर कुछ लोग शहरी की खरीदारी में मसरूफ है, उनसे बात करेंगे। जहाँ पर हम खड़े हैं इस वक्त, ये कैपिटल है फूड के हवाले से मुल्तान का। यहाँ पर आपको देसी फूड बहुत अच्छा मिलेगा। यहाँ पर आपको हलवा पूरी भी मिलेगी और फिर यहाँ के ये चिकन चने जो है, छोले जिसे हम कहते हैं, मुल्तान का ट्रेडिशन है। लस्सी मिलेगी आपको देसी किस्म की, चाटी की लस्सी मिलेगी और दूसरे चने मिलेंगे लाहौरी स्टाइल के। और बच्चे सहरी में अल्हम्दुलिल्लाह पेट भर के कम पैसों में, इस महंगाई के दौर में कम पैसों में जी भर के उसका सजदा शुक्र अपिजा लाते हैं। जिनका कहना है कि ये जो MDA चौक है ये फूड के हिसाब से कैपिटल है, यहाँ पर हर चीज़ दस्तियाब है। ये रोजाना अपने बच्चों के लिए सहरी यहीं से लेकर जाते हैं। सक्खर में स्टेशन रोड पर वाक़ होटल पर 45 साल से लोग फैमिलीज और दोस्तों के हमरा सहरी करने आ रहे हैं। इस बारे में बताएंगे सलीम साहब।
स्टेशन रोड पर कायम मशहूर बारबेक्यू स्टॉल पर मौजूद है, जहां पर लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, जहां पर सहरी कर रही है। इस स्टॉल मालिक का कहना है कि वो पिछले 4 दिहाइयों से ये स्टॉल चला रहे हैं। ये स्टॉल जो है उनका अब जायके, लज्जत और क्वालिटी की वजह से पूरे इलाके में मशहूर है। ना सिर्फ इस इलाके के लोग बल्कि शहर से के मुख्तलिफ इलाकों से लोग जो है वो अपने दोस्त अहबाब और फैमिली के हमरा यहाँ पर आते हैं। स्टॉल के मालिक मौजूद है, उनसे बात करते हैं। बताइए कि कितने सालों से आपका ये स्टॉल चल रहा है और क्या खसूसियत है इस स्टॉल की? सर ये 45 साल से है और ये खसूसियत है कि ये फ्राई आइटम सिर्फ हमारे सक्खर में होते हैं और कहीं नहीं होते। स्टॉल के मालिक है, आपने उनकी बात सुनी कि ना सिर्फ इस इलाके के लोग बल्कि मुख्तलिफ इलाकों से लोग, रोड़ी और दीगर इलाकों से लोग भी यहाँ पर आते हैं, जो यहाँ पे सहरी भी करते हैं और पार्सल लेके जाते हैं। इनका जो स्टॉल है लज्जत, जायके और क्वालिटी की वजह से पूरे शहर में मशहूर है, जिसकी वजह से लोगों की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर सहरी करने के लिए पहुँचती है। हैदराबाद में चटोरे दोस्तों की जानिब से मटन कड़ाही और कोरमे की तैयारी आखिरी मराहिल में है। हमारे नुमाइंदे नासिर हसन खान इस वक्त वहां मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बताइए नासिर, कोरमा तैयार हुआ? जी, इस वक्त हम हैदराबाद के चंद दोस्तों के ग्रुप के साथ मौजूद हैं और वो सहरी का एहतमाम कर रहे हैं कि हम कुछ सहरी इकट्ठी करते हैं और कुकिंग जैसे कि मेरा शौक है, तो आज अपने हाथों से अपने दोस्तों के लिए मैं मटन कढ़ाई बना रहा हूँ। सहरी का दोस्तों के साथ प्रोग्राम बनाया हुआ है और जो है अभी मैं जो है बना रहा हूँ कोरमा बना रहा हूँ, मटन का कोरमा वो बना रहा हूँ। अब देखते हैं दोस्त क्या बताते हैं, कितना जायकेदार बनाया है। सहरी करेंगे और भरपूर अंदाज में दोस्त एंजॉय करेंगे। दूध में देसी अंडे, जलेबी, जैतून का तेल और शहद समेत दीगर ताकत बख्श अज्जा शामिल हों तो एक भरपूर सहरी बन जाती है। पेशावर के किस्सा ख्वानी बाजार में निफ सदी पुरानी दूध शॉप का अहवाल जानते हैं जफर इकबाल से। बिल्कुल, इस वक्त मैं पेशावर के तारीखी किस्सा ख्वानी बाजार में चाचा अहमद अली दूध वाले की शॉप पर मौजूद हूँ और यह शॉप तकरीबन 50 साल पुरानी है। रमजान में सहरी के वक्त नौजवान यहाँ पर खास कर आते हैं और वो नौजवान जो कि एक्सरसाइज करते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, तो वो एक मजबूत सहरी करने के लिए यहाँ का रुख करते हैं ताकि उसमें ताकत हो। तो इस वक्त कुछ नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। ये तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हेल्प करते और हम तकरीबन वीक में 3-4 बार आते हैं सिर्फ इसके लिए। तो ये हमें एक दोस्त ने भी प्रेफर किया बहुत ज़्यादा। खैर हम तो खुद भी आते हैं इधर, बहुत टाइम से आ रहे, लेकिन माशाल्लाह इसमें बहुत जो है ना वो है मतलब स्ट्रेंथ के लिए बहुत अच्छा है। दूध में जो इनके लिए तमाम ग़िज़ाइयत से भरपूर चीज़ें डाली गई है, ये सहरी में ये इस्तेमाल करेंगे और फिर इसके बाद घर जाएंगे। आजाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में भी शहरियों की बड़ी तादाद अपनी मनपसंद कश्मीरी डिश गोश्ताबे, कुलचे और बाकर खानी से सहरी करने मुख्तलिफ होटलों पर मौजूद हैं। इस हवाले से हमारे नुमाइंदे सरदार रजा से बात करते हैं। जी सरदार रजा। मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में और सहरी का वक्त है। बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे शहरी जो है इस वक्त सहरी करने के लिए मौजूद हैं और मेरे साथ यहाँ मौजूद है कुछ शहरी, इनसे बात करते हैं। कुलचा, बाकरखानी और ये चाय और ये सकाफत है हमारी कश्मीरियों की। इसके अलावा हमारा वाजवान है, दीगर चीज़ें, तो ये चीज़ें जब तक न हो तो हमारी सहरी मुकम्मल नहीं होती। जब तक बाकरखानी और ये कश्मीरी जो नून चाय है हम ये ना पिए तो हमारी सहरी मुकम्मल नहीं होती। हमारी जो बाकरखानी कश्मीरी सौगात है माशाल्लाह बड़ा मज़ा, और साथ हमारे गोश्ताबी ना हो तो गोश्ताबी भी साथ साथ खा रहे, बड़ा एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे आज सहरी में। अपनी घर की सहरी को छोड़ के जो हम स्पेशली कश्मीरी जो सहरी, गोश्ताबे, चाय, बाकरखानी यहाँ के जो मुजफ्फराबाद के मशहूर है, तो उसको हम एंजॉय करने आए हैं दोस्तों के साथ। जब बात आ जाए गोश्ताबा और बाकरखानी और कुलचों की, तो शहरियों की बड़ी तादाद इस वक्त अपने मनपसंद पकवान जो है वो खाने के लिए यहाँ पे मौजूद है। जी, ईद से पहले ट्रांसपोर्ट माफिया ने किरायों में मनमाना इजाफा कर दिया। महकमे सूबाई ट्रांसपोर्ट के वाज़ेह अहकामात के बावजूद ट्रांसपोर्टर्स इजाफी किराया ले रहे हैं, जिससे शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट करेंगे अनवर खान। इस साल ईद उल फितर से कबल ट्रांसपोर्ट के बस अड्डे सदर, लियाकताबाद और दीगर इलाकों से सुरागोट तो मुंतकिल किए जा चुके हैं। ताहम इस साल भी इससे कबल अंदरून शहर सफर करने वाले मुसाफिर इजाफी किराया देने पर मजबूर हैं। कार का किराया तो 1200 रुपए 1500 रुपए ले रहे हैं, अब मजबूरी में हम जा रहे हैं कार में 1200 रुपए दे के। अपनी मनमानी किराया लेते हैं तो हम लोग तो हमें तो परेशानी होती है। हुकूमत को चाहिए ईद के दिनों में कम से कम किराए कम करने चाहिए। ईद से कबल हैदराबाद से इलाज के गर्ज से आने वाले मरीजों को डॉक्टर तो न मिल सके, ताहम दो तरफा सफरी किराया इजाफे के साथ अदा करना पड़ा। हैदराबाद से आए थे शोहर के इलाज के लिए जिना हॉस्पिटल, और अब वापसी हैदराबाद ही जा रहे हैं। डॉक्टर मिले नहीं हॉस्पिटल में। मरीज 1200 रुपए दे रहे हैं, मजबूरी के लिए क्या करें, जाना था घर पे। अभी
जना में दिखा के CT स्कैन निकाल के फिर इधर आए। हर साल ईद से कबल कराची से बिलखुसूस अंदरूनी शहर जाने वाले शहरियों को इजाफी 700 से 800 रुपए फी मुसाफिर अदा करने पड़ते हैं। बस, वैगन, ट्रांसपोर्ट और कार के अपने अपने मनमाने किराए बरकरार रहते हैं। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट के वाज़ेह अहकामात के बावजूद मुसाफिरों से मनमाने किराए वसूल करने का सिलसिला बदस्तूर बरकरार है। शहरियों ने मुतालबा किया कि हुकूमत संगीन सूरत-ए-हाल का नोटिस ले। कैमरामैन अदनान के साथ अनवर खान, ARY न्यूज, कराची। कराची से ईद स्पेशल ट्रेन 1000 से ज्यादा मुसाफिर लेकर रावलपिंडी के लिए रवाना हो गई। लोग घरों को वापसी और अपनों में ईद मनाने के लिए पुरजोश। ईद स्पेशल ट्रेन से रेलवे को 31,80,000 रुपए से ज्यादा की आमदनी हुई। अंजुम वहाब की रिपोर्ट। मुख्तलिफ शहरों से आए अफराद की ईद मनाने के लिए आबाई इलाकों को वापसी शुरू हो गई। महकमा रेलवे की दूसरी ईद स्पेशल ट्रेन कराची कैंट स्टेशन से रावलपिंडी के लिए रवाना हो गई। मुसाफिरों को कहना था कि ईद के रश की वजह से किसी ट्रेन की बुकिंग नहीं मिली थी, लेकिन ईद स्पेशल ट्रेन में निशिस्त और बर्थ भी मिल गई और अब हम अपने अहले खाना के साथ ईद की खुशियाँ मनाएंगे। ये बहुत अच्छी इन्होंने चलाई है ईद स्पेशल ट्रेन ना, और टिकट भी बिल्कुल मुनासिब है। बहुत अच्छी ट्रेन है, हमें मजा आ रहा है इसमें। डिस्काउंट पे ऐसे समझो कि हमें 37 की अर्जेंट में टिकटें मिली और बड़ी अच्छी मिल गई, तीनों बरतें, बच्चों के लिए भी और अपने लिए भी। हम कराची से टोबा जा रहे हैं। सस्ता टिकट तो नहीं है फिलहाल, वही है टिकट तो वही है सारी, लेकिन बस ये है कि अपने घर में जा रहे हैं, खुशी हो रही है कि चलो टिकट मिल गई है, वरना इतना रश होता है ट्रेनों में। ये है कि अब देखते हैं आगे ट्रेन का क्या है क्या नहीं आगे। रेलवे हुकाम का कहना है कि दूसरी ईद स्पेशल ट्रेन 13 इकोनॉमी क्लास की बोगियों पर मुश्तमिल है। महकमा रेलवे को 31 लाख रुपए की आमदनी हुई है। ईद स्पेशल ट्रेनों में मुसाफिरों की सहूलत समेत सिक्योरिटी का भी मुकम्मल इंतजाम है। कैमरामैन शाहिद बिरानी के साथ अंजुम वहाब, ARY न्यूज, कराची। रवायती खुस्से जो हर त्योहार की पहचान हो, ईद की तैयारी सिर्फ कपड़ों और जेवरात तक महदूद नहीं, जूतों का इंतखाब भी इतना ही जरूरी है। यही वजह है कि रावलपिंडी के बाजारों में खुस्सों के स्टॉल्स पर खरीदारों का रश बढ़ गया है। ज़ैनब अली की रिपोर्ट देखिए। कपड़े पर नफीस कढ़ाई, रवायती मगर मुनफरिद डिजाइन और ये हाथ जो सादा जूते को फनपारा बना देते हैं। ईद के करीब आते ही खवातीन खुस्से खरीदने के लिए बाजारों का रुख कर रही हैं। हर कोई चाहता है कि इनके जूते जोड़े के साथ मैच हो। दुकानदारों के मुताबिक इस सीजन में खास तौर पर हाथ से बने हुए खुस्से ज्यादा मकबूल हो रहे हैं। आम दिनों में तो बस नॉर्मल काम चलता रहता है, ईद के दिनों में काफी रश पड़ती है। बस यही होती हैं कि जो ड्रेसेस होते हैं उनके साथ मैचिंग खुस्से वगैरह और ज्वेलरी और इस तरह की चीजें, तो बस उसी की ईदी की शॉपिंग के लिए आए हैं। बाजारों का माहौल बता रहा है कि खुस्से न सिर्फ फैशन का हिस्सा हैं, बल्कि सकाफती वर्से की अलामत भी समझे जाते हैं। खुस्से न सिर्फ रिवायती जूते हैं, बल्कि ईद की तैयारी का एक अहम हिस्सा भी है। इसलिए ईद के करीब आते ही इनकी मांग में मजीद इजाफा हो जाता है। कैमरामैन आदिल शहजाद के साथ ज़ैनब अली, ARY न्यूज, इस्लामाबाद। कराची में सब घर वालों की ईद की तैयारी मुकम्मल कराने के बाद मर्दों ने अपनी छोटी मोटी खरीदारी शुरू कर दी है। बेल्ट्स और वॉलेट्स की दुकानों पर रश लग गया है। रूबीन आलवी की रिपोर्ट। की तैयारी अब आ गई है इख्तिताम की तरफ। घर वालों की खरीदारी मुकम्मल करवाने के बाद अब अपने लिए कुछ वक्त निकालकर मर्द हजरात वॉलेट्स और बेल्ट्स लेने दुकानों पर पहुंच गए। मैं इधर बेल्ट लेने आया था अपने लिए, बाकी मेरी शॉपिंग हो चुकी है, बेल्ट और वॉलेट वगैरह बाकी है। बच्चों की शॉपिंग कर ली है, अब मेरा टाइम मिला है तो मैं देख रहा हूँ। अभी देखते हैं क्या ये रेट लगाते हैं, क्योंकि ईद के टाइम में आपको पता है कि पैसे हाई चार्ज करते हैं लोग। मैंने ईद के लिए ब्लैक और ब्राउन कलर की बेल्ट खरीदी है, मैं भी वॉलेट भी खरीदूंगा। लेदर, रेगजीन के वॉलेट्स और बेल्ट्स की दुकानों पर मर्दों का अब काफी रश देखने में आ रहा है। लेदर के भी बेल्ट है, रेगजीन के भी है, कपड़े में नायलॉन के भी है, स्ट्रेचेबल वगैरह भी है, काफी वैरायटी है। बेल्ट वगैरह खरीद रहे हैं, नोमाल वगैरह खरीद रहे हैं और मतलब क्वालिटी मांग रहे हैं, सॉक्स वगैरह मांग रहे हैं और जाली वाली टोपियां वगैरह मांग रहे हैं। पहले एक जमाना था कि घर की खवातीन ईद की मुनासिबत से रुमाल, टोपियां भी खरीदा करती थी ताकि मर्द हजरात। हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।